Hello students, this is question number 52, page number 6.66. Beta, in this question, if you read the last line, you will find that you have been asked to prepare evaluation account, capital accounts of the old partners and the balance sheet of the new firm. Students, you have drawn the format of revaluation account, partners capital account and the balance sheet. Here you have given the working notes also. Now, after reading the last line of the question and drawing the format, we come to our next step, that is adjustment of the question. First adjustment in this question you have been given in regarding goodwill. Goodwill of the firm is valued at rupees 1,12,500 and Y's share of it to be adjusted into capital accounts means simply we can say we are to pass the adjustment entry. Adjustment entry mean gaining partners capital debit to sacrificing partners capital account. Gaining, in this question you have been given the old ratio as well as the new ratio. First you have to calculate the gaining ratio as well as sacrificing ratio. Then you will pass the adjustment entry. On the basis of adjustment entry, you are going to give the accounting treatment. See here in the partners capital account. X capital debit, Z's capital account debit, to Y's capital. This is the amount for compensating to Y. X and Z's capital should be subtracted because they are making a gain. So their capital should be subtracted, means debited. In their gaining ratio, multiply their gaining ratio with the amount of goodwill of the firm. So their capital should be debited, means subtracted. To Y's capital. To Y means Y's capital should be credited, means increase. Check here by X by Z in the column of Y. This is for the goodwill. This is for the goodwill. Means X and Y gaining partners are compensating to Y. They are debiting their capital and increasing the Y's capital to compensate him. Is it clear? Now, the next adjustment in the question, two adjustment we are reading together. Fixed assets be appreciated by means this is the gain. Fixed assets in the question you have been given 1,87,500. It is the gain. And gains are written in the credit side of the revaluation account. Fixed assets rupees 37,500. Next adjustment, stock to be reduced to. Old value of stock was 82,500. Now it is decreasing to 7,500. I have to speak in Hindi so that you may understand better. स्टॉक बेटा बुक में आपको 82,500 का दिया हुआ है. एडजस्टमेंट कहती है वो घटते घटते 75,000 तक, टू मीन्स तक, घटते घटते 75,000 तक रह गया. इसका मतलब पहले 82,500 था, अब 75,000 का रह गया है. तो डिफरेंस आपको लेना है कि लॉस हुआ है. लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में आते हैं, ध्यान रखना बच्चों, डेबिट में आते हैं रिवैल्यूएशन के. तो स्टॉक के नाम से 7,500 रुपीज आपने लिख दिया. गेन क्रेडिट साइड और लॉसेस डेबिट साइड. आपको मालूम होगा एक एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट कम से कम दो जगह होता है. एवरी एडजस्टमेंट इज ट्रीटेड और गिवन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट लेस्ट टू प्लेसेस. सो फर्स्ट वी हैव गिवन द ट्रीटमेंट इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड सेकेंड in the balance sheet of the question.
In the balance sheet of the question, fixed assets rupees 2,25,000 at the new value. Stock 75,000 at the new value. The next adjustment in the question you have been given, Y be paid amount brought by X and Z so as to make their capitals proportionate. This adjustment is similar as you have done the treatment of adjustment question in question number 51. It was adjustment in itself. So this adjustment is given the treatment in the last while closing the accounts. Now come on the balance sheet of the question which you have been given. In the balance sheet you have been given the debtor, write debtor from the balance sheet of the question you have written, and the bank is saying that minimum balance should be there. So you are maintaining the minimum balance. Minimum means कि 15,000 बैंक में होना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो, तो बेटा ये आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा. Now the liability side of the balance sheet in the question, write sundry creditors, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड. बेटा ये ईपीएफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, क्योंकि ये एम्प्लॉयज के नाम का प्रोविडेंट फंड आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है जो आपको पे करना ही होता है. तो ये वो फंड नहीं है जो आप पार्टनर्स में बांट दें. ठीक है, ये लायबिलिटी में ही शो किया जाएगा. क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. क्वेश्चन में जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है वो आपने ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके उनकी कैपिटल इंक्रीज कर दी. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. अब क्वेश्चन में एक्स वाई जेड के ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं, आपने यहाँ ओपनिंग बैलेंसेस लिख दिए क्रेडिट साइड. इसके बाद बेटा अब आप इसको क्लोज करेंगे. क्लोजिंग में आपका स्टेप आता है 1 रिवैल्यूएशन. क्रेडिट साइड माइनस डेबिट 30,000 का गेन आया, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर किया, जिनसे इस गेन से इनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी. आपने इनकी कैपिटल इंक्रीज कर दी, लिखा रिवैल्यूएशन अकाउंट 15,000, 9,000 और 6,000. ठीक है बच्चों, अब आपको क्या ध्यान देना है, आपको देखना है 1, 2, 3 इनका टोटल चेक करना है पहले, और इसमें ये माइनस करना है और इनके बैलेंस चेक करने हैं. अब इस चीज़ को हम वर्किंग नोट्स में सीखते हैं कि लास्ट एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट जो है क्वेश्चन का वो क्या करना है. बेटा इसको बड़े ध्यान से समझना, ये वर्किंग नोट है आपके लिए. जो क्वेश्चन की लास्ट एडजस्टमेंट है, आपने एक्स की एडजस्टेड कैपिटल निकाली है. बेटा एडजस्टेड मीन्स ओपनिंग बैलेंस में जो प्लस होना है कर दें और जो माइनस होना है वो माइनस कर दें. ठीक है, मीन्स एक्स के कैपिटल का क्रेडिट टोटल माइनस डेबिट टोटल, तो उसकी एडजस्टेड कैपिटल 1,80,000. इन द सेम मैनर वाइज एडजस्टेड कैपिटल जेड्स एडजस्टेड कैपिटल मीन्स इनके क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस आपको निकालना है. यहाँ आपको वर्किंग नोट्स में क्लियरली दिया हुआ है कि क्या आइटम्स आपको प्लस करनी है क्या माइनस करनी है. ये हमने कैपिटल अकाउंट से ही लिया है. नाउ मेक द टोटल ऑफ the adjusted capital of these three partners, because this amount of 3,67,500 will be the capital of new firm. Is it clear? X, Y, Z total is this, and this capital should be proportionate in the proportion you can say of X and Y, that is 3/5 of 3,67,500. The balance should be 2,20,500. Y's capital 2/5 new profit sharing ratio. In the new profit sharing ratio of the firm's capital rupees this. बेटा तीनों की कैपिटल एक्स वाई जेड की कैपिटल का टोटल जो एडजस्टेड कैपिटल्स हैं, यानी बैलेंस कैपिटल के क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस आपने यहाँ इस तरीके से कैलकुलेट किया एडलेस करके. ये रहा, क्योंकि Z जा रहा है ये कैश लेकर आएंगे तो इन दोनों की कैपिटल यही रहेगी. ये बेटा X की Y की और Z को जितना पेमेंट करना है वो.
तो ये फर्म की नई कैपिटल एक्स के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होनी चाहिए और वाई की भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। ये इनका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होना है। तो अब आप कैपिटल अकाउंट में पहले बैलेंस कैरी फॉरवर्ड बच्चों लिखेंगे। देखो बच्चों, पहले आपने ये वर्किंग नोट से लिखा, वर्किंग नोट से बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड मैं आपको बता दूं, जैसे ही बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आता है तो कुछ बच्चों के दिमाग में, माइंड में यही आता है कि बैलेंस क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस होता है। नहीं बेटा, बैलेंस को हम सिंपली कहते हैं रिमेनिंग अमाउंट, शेष। ठीक है, टोटल के सेंस में भी बैलेंस आता है, लेकिन जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं बैलेंसिंग फिगर, कि हमने दोनों को बैलेंस करके किया। तो ये बैलेंस जो कैपिटल अकाउंट का है, एक्स का और जेड का, वर्किंग नोट के थ्रू। अब आपने क्या करना है, अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 51 में हमने कैश चेक किया था कि कैश कितना लाए थे, इन द सेम मैनर यू विल कैलकुलेट द अमाउंट और कैश टू बी ब्रॉट बाय एक्स एंड जेड। ये आपका बैलेंसिंग फिगर करके अब आ सकता है। आप चाहें तो फिर से बेटा डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस निकालें। यहाँ डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा, माइनस करेंगे क्रेडिट का, तो ये बैलेंसिंग फिगर निकल कर आएगी कि इनको बैलेंसिंग फिगर कि इनको ये कैश लेकर आना है। ठीक है, मैं आपको बैलेंसिंग फिगर फिर से यहां समझा देता हूं। बेटा ये एक्स की न्यू कैपिटल होनी है। पुरानी कैपिटल एक्स की आपने दी हुई थी कितनी, 180। तो आप कह सकते हैं कैश टू बी ब्रॉट इन बाय एक्स रुपीज 2,20,500 माइनस 1,80,000। ठीक है, ऐसे ही कैश टू बी ब्रॉट इन बाय वाई इज इक्वल टू, वाई की कैपिटल बेटा न्यू ईयरी 1,47,000 माइनस वाई की एडजस्टमेंट के बाद की कैपिटल 133,500। और ये जो कैश है बेटा एक्स के और वाई के कैपिटल अकाउंट को बढ़ाएगा, क्योंकि वो कैश लेकर आएंगे। एक्स 40,500 और जेड 93,000। इज इट क्लियर? ये बेटा वर्किंग नोट था। बेटा I hope you have got this. I have to make more and more explanation. I have to repeat the words again and again, so that on the repeated way, if you listen and you try to understand, you may get this question. Now you are writing the balance of capitals of X and Z here in the balance sheet of the new firm. Do the total of liability and asset side. These will match, and you can say the complete solution is right. Thank you.